Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan. This is the second poem, Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. And this poem is meant for the students of class 12. And the name of the book is Flamingo. Flamingo book की ये second poem है, Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. Now we will count to 12. It begins like that. आप पिक्चर में देख रहे हैं, person is meditating. Sitting in meditation posture. Okay, let's go ahead. You are watching several pictures of the people who are sitting in meditation posture. This picture is of the poet Pablo Neruda. Okay, Pablo Neruda was born on July 12, 1904. Parallel child, died on 23rd September 1973 at Santiago, Chile. Let me tell you something about the poet. Poet के बारे में कुछ जान लेते हैं. His father was a railway employee and his mother, who died shortly after his birth, a teacher. Pablo Neruda के जो फादर थे वो एक रेलवे एम्प्लॉय थे, रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते थे और उनकी मदर का देहांत इनके जन्म के तुरंत ही बाद हो गया था और मदर एक टीचर थी इनकी. His works are 20 love poems and a song of despair that appeared in 1924. The Colombian novelist Gabriel Garcia Marquez once called Neruda the greatest poet of the 20th century in any language. कोलंबिया के नॉवलिस्ट गैब्रियल ग्रेशिया ने इनको 20th century का महान पोएट बताया है. Video lecture 1, Keeping Quiet by Pablo Neruda. Let's begin with the poem. Before I come to line explanation, let me explain something about the poem. In this poem, the poet Pablo Neruda tells the readers about the importance of introspection. इस कविता में, इस पोएम में जो पोएट हैं पब्लो नेरूडा, वो इंट्रोस्पेक्शन के महत्व के बारे में बता रहे हैं. इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? आत्म विश्लेषण, इंट्रोस्पेक्शन. It can be done only when we are perfectly quiet. आत्म विश्लेषण तभी हो सकता है जब हम बिल्कुल शांत हो. Quiet means शांत. What is introspection? होता क्या है introspection? It's the mental activity by which we carefully examine our thoughts, feelings and our behavior towards others. Introspection एक mental activity है, मानसिक क्रिया है, जिसमें हम बहुत ही ध्यान से माइन्यूटली अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपने व्यवहार को, दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को एग्जामिन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में. तो इंट्रोस्पेक्शन होता है जिसमें हमारे अपने विचार, अपने भावनाएं और अपना बिहेवियर हमारे सामने आता है और जो उसमें त्रुटियां होती हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में संज्ञान लेते हैं और जो अच्छी बातें हैं उन्हें और अधिक बढ़ाते हैं. By doing so, we are able to correct our mistakes and amend our behavior towards others. ऐसा करके हम अपनी गलतियों को करेक्ट करते हैं, दुरुस्त करते हैं, ठीक करते हैं और दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को भी ठीक करते हैं, अमेंड करते हैं, उसमें सुधार लाते हैं. We become better human beings by doing introspections daily. और अपना इंट्रोस्पेक्शन डेली करके हम बहुत ही भले इंसान बन जाते हैं. We become better human beings on this earth planet. इस धरती पर हम अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाएं, गनीमत होती है, बहुत बड़ी बात होती है. आज के इस युग में, आधुनिकता के इस युग में अच्छे मानव, अच्छे इंसान बहुत कम रह गए हैं. Let's read the text. Now we will count to 12 and we will all keep still. Let's begin with the text. Now we will count to 12 and we will all keep still. Now means अब, we will count, हम गिनती करेंगे कहाँ तक? 12 तक, to 12, और हम चुप रहेंगे. This is very simple line. The poet says that he is going to count up to 12. He suggests that we all should count up to 12 and keep quiet. The poet says that we need to count up to 12 only in order to reach the state of mind when introspection becomes possible.
इट्स पॉसिबल व्हेन वी आर क्वाइट। कवि कहते हैं कि अब वो उन्हें आवश्यकता है, उन्हें ज़रूरत है 12 तक गिनती करने की, ताकि वो अपने मस्तिष्क में उस स्थिति तक पहुंच जाए जिसमें इंट्रोस्पेक्शन संभव होता है। और वो स्थिति क्या होती है? जब इंसान मानसिक रूप से शांत होता है, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा होता है, तो इंट्रोस्पेक्शन, उसका आत्मविश्लेषण संभव हो जाता है। तो बाय काउंटिंग अप टू 12 वी आर एबल टू एग्जामिन आवर इनर सेल्फ। The poet says that we will count up to 12 and remain motionless. So by counting up to 12, we are able to examine our inner self. कवि 12 का नंबर इसलिए लेते हैं कि ताकि वो एक मानसिक रूप से जब वो गिनती कर रहे होंगे तो धीरे धीरे वो एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए फोकस हो जाए, और 12 के नंबर के आसपास आके 8 पे, 7 पे, 8 पे या किसी भी नंबर पे यहाँ आके वो he will become concentrated. He is going to focus on his thoughts. तो 12 की गिनती करते करते वो फोकस्ड हो जाएंगे और अपनी इनर सेल्फ है, जो अंदर की दुनिया है, उसका आत्म विश्लेषण करेंगे, अपने विचारों का, अपने बिहेवियर का, अपनी फीलिंग्स का। The poet says that we will count up to 12 and remain motionless. और कवि कहते हैं कि जब वो इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू करेंगे तो वो बिल्कुल स्थिर, मोशनलेस क्या होता है? स्थिर बैठेंगे, और गिनती 12 तक की होगी। 12 तक पहुंचते पहुंचते इंसान इंट्रोस्पेक्शन में पहुंच जाता है। विल नॉट डू एनी फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग दैट टाइम। और उस समय कोई भी व्यक्ति जो इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा। नेक्स्ट लाइन्स है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड and not move our arms so much. On the face of the earth means the surface of the earth. धरती की सतह पे जहाँ जहाँ इंसान बैठे हैं, धरती पे जहाँ जहाँ इंसान है, मान लो सभी ये इंट्रोस्पेक्शन की स्टेट में बैठे हैं, वो कोई भी किसी भी भाषा में, बिकॉज ऑन द अर्थ पीपल आर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इन डिफरेंट कंट्रीज, तो अलग अलग भाषाएं बोल रहे होते हैं। बट वाइल डूइंग इंट्रोस्पेक्शन नो वन शैल स्पीक इन एनी लैंग्वेज, दे विल रिमेन क्वाइट। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ 1 सेकेंड के लिए रुकते हैं। नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और अपनी बाजुओं को इतना अधिक मूव नहीं करेंगे। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लाइन्स। द पोएट सीम्स टू सजेस्ट दैट पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड शुड रिमेन क्वाइट टुगेदर and should not speak any word in any of their languages. कभी ऐसा प्रतीत होते हैं जैसे वो सजेस्ट कर रहे हैं दुनिया के लोगों को कि जहाँ कहीं भी वो बैठे हैं, चुप बैठे हैं और इंट्रोस्पेक्शन की मुद्रा में आ गए हैं और इंट्रोस्पेक्शन में एंटर होने वाले हैं, तो उन्हें एक भी शब्द अपनी भाषा में नहीं कहना है। They are supposed to sit quiet, totally silent while doing introspection. They should neither speak nor do any physical activity even for a single second. 1 सेकंड के लिए भी ना तो उन्हें बोलना है और ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। The workers working at machines would stop their engines. सपोज करो कुछ लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, किसी मशीन के इंजन में काम कर रहे हैं, इंजन पे काम कर रहे हैं, then they are supposed to stop their work and sit on the earth keeping quiet. और उन्हें भी चुपचाप धरती पे बैठ जाना है और बिल्कुल शांत, बिना कोई एक्शन किए अपनी मशीन बंद कर दें वो। टेक्स्ट, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। इन द अबव लाइन्स द पोएट इमेजिन्स दैट ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर सिटिंग इन ए मेडिटेशन पोस्चर. Their thoughts are focused now in meditation. They are thinking about their thoughts and emotions, and their body is quite still. It's not moving. They are not moving any part of their body, and they are not speaking in any language. So imagine the situation in the whole world when all the people are sitting together and they are doing meditation. In such a situation, there is no rush, no engine is working, all are sitting together. It seems to be a very exotic situation, an unusual moment
फॉर द पोइट। और ये पोइट के लिए बहुत ही अनयूजुअल, असाधारण सा पल है जब दुनिया के सभी लोग अपने कार्यों को छोड़ के एकदम धरती पे बैठ गए हैं, फ्लोर पे बैठ गए, जहाँ कहीं भी उन्हें जगह मिली है, और एक कल्पना कर रहे हैं कवि कि एक एक ही समय में सारी दुनिया के लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, यूनिफाइड होके, एकजुट होके मेडिटेशन के पोस्चर में आ गए हैं। कुछ देर के लिए दे हैव स्टॉप्ड ऑल देयर एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटीज उन्होंने बंद कर दी हैं। दे आर फोकसिंग इनसाइड देयर बीइंग, अपने अंदर ही वो फोकस कर रहे हैं। ऐसे में कोई रस नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है, कोई मशीन काम नहीं कर रही, और दुनिया के सभी लोग टुगेदर हैं। द पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड आर टुगेदर सिटिंग इन इंट्रोस्पेक्शन पोस्चर। They have lifted themselves upon the barriers of caste, color and creed. किसी धर्म की दीवार उनको अलग नहीं कर रही है, और कोई धर्म उन्हें एक डिवाइड नहीं कर रहा है। इन सभी बैरियर से ऊपर उठ के वो इंट्रोस्पेक्शन में लगे हुए हैं। दिस इज वेरी एग्जोटिक सिचुएशन फॉर द पोइट। Let's see its explanation. If they do, they means the people of the world do so, they would have strange and wonderful experience in which there would be no hurry to finish any activity. अगर दुनिया के लोग सभी एकजुट इकट्ठा अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और इंट्रोस्पेक्शन करने लग जाते हैं, और कोई भी हरी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपना कार्य फिनिश करने के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहा है, सारी एक्टिविटीज, ऑल द एक्टिविटीज हैव बीन सस्पेंडेड, सभी एक्टिविटीज सस्पेंड कर दी गई हैं। दे आर ऑल यूनाइटेड एंड सिटिंग टुगेदर इन द पोस्चर ऑफ मेडिटेशन और इंट्रोस्पेक्शन। व्हेन द पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड would remain quiet at the same time, the people doing different activities in different parts of the world would stop their activities. तो जब तमाम दुनिया के लोग चुप बैठ जाएंगे, एक ही समय में एक साथ चुप बैठे हुए हैं, और कोई भी व्यक्ति कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, इट वुड बी सो स्ट्रेंज, ये नज़ारा जो होगा बहुत ही अजीब होगा, अद्भुत होगा। इस धरती पे ऐसा नज़ारा आज तक देखने को नहीं मिला होगा जैसा नज़ारा पोइट पब्लो नेरूदा कल्पना में कर रहे हैं। दुनिया के सभी लोग एकजुट होके इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। टेक्स्ट। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hand. Text. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hand. Fishermen जो समुद्र तट पे काम कर रहे हैं, अपना क्या काम है उनका, मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं, फिशरमैन हैं, वो भी कुछ देर के लिए रुक जाएंगे क्योंकि अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं वो, तो थोड़ी देर के लिए ही सही व्हेल मछलियों को किसी भी नुकसान से मुक्ति मिल जाएगी। और द मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो व्यक्ति नमक को एकत्रित कर रहा है, समुद्र तट के आसपास क्या होते थे पहले, अब भी शायद हो, तो कुछ खेत बने होते हैं जिनमें पानी आता है समुद्र का और वापस जाता है, तो या समुद्र के पानी को जैसे तैसे यहाँ ले आते हैं और वो सूख जाता है तो उसमें नमक बन जाता है। तो कुछ लोग लगे होते हैं नमक को एकत्रित करने में, एंड देयर हैंड्स गेट इंजर्ड, उनके हाथ इंजर्ड हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति, द पर्सन हु वाज गैदरिंग सॉल्ट, ही वुड हैव सम मोमेंट्स टू सी हिज इंजर्ड हैंड्स, और जो व्यक्ति नमक को एकत्रित कर रहा है तो उसे थोड़ी सी फुर्सत मिलेगी अपने हाथों की तरफ निहारने की, अपने हाथों को देखने की कि वो जख्मी हो चुके हैं। तो हो सकता है अपने जख्मी हाथों को देख के वो लालच में आके अधिक नमक एकत्रित ना करना चाहे। तो इंट्रोस्पेक्शन के बहुत लाभ हैं। यहाँ पे दिखाया कि मछलियों को कुछ समय के लिए नुकसान होना बंद हो जाएगा। द फिशरमैन वुड स्टॉप कैचिंग फिश एंड व्हेल्स, जो फिशरमैन है, जो फिश को कैच कर रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए उन मछलियों को, व्हेल्स को कैच करना बंद कर देंगे। They would stop harming whales for some seconds, कुछ सेकंड्स के लिए वो व्हेल मछलियों को नुकसान करना बंद करेंगे। After introspection, their thought would be purified of all their cruelties and unsympathetic attitude.
जब वो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हमारे दिमाग में, दिल में बहुत सी फीलिंग्स होती है जो कुदरती तौर पे होती है, जैसे दूसरों के प्रति सहानुभूति, वो भाव, जो वो फीलिंग्स उसके जग जाएंगे और हो सकता है वो मछलियों पे अधिक अत्याचार ना करे, क्योंकि वो जो क्रूअल्टी उसके अंदर है वो प्योरीफाई हो जाएगी इंट्रोस्पेक्शन में। दे वुड कैच एज मच फिश एज दे रिक्वायर फॉर देयर सर्वाइवल। कई बार लालच में आके, पैसा एकत्रित करने के लालच में आके वो अधिक मछलियां कैच करते हैं, उनको बेचते हैं। एक किस्म से मछलियों की जान जाती है। तो जब वो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, देन दे वुड सिट इन इंट्रोस्पेक्शन, दे विल एनालाइज देयर थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स विल कंटिन्यू एंड दे वुड रिमूव देयर नेगेटिव थॉट्स, और नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करेंगे और अपने बिहेवियर को प्योरीफाई करेंगे। द मैन हु इज गैदरिंग सॉल्ट वुड आल्सो फील चेंज्ड आफ्टर इंट्रोस्पेक्शन। जो व्यक्ति नमक को एकत्रित कर रहा है उसमें भी बदलाव आएगा इंट्रोस्पेक्शन के बाद, उसमें चेंज आएगी उसके व्यवहार में। ही वुड गेट रीड ऑफ हिज ग्रीड, लालच से गेट रीड मीन्स छुटकारा मिल जाएगा उसे, एंड स्टॉप कलेक्टिंग सॉल्ट, और अधिक जरूरत से ज्यादा सॉल्ट को वो एकत्रित नहीं कर पाएगा। द लाइन वुड सी हिज हॉट हैंड्स suggest his sudden awareness about his mistake of collecting salt more than his need। ये जो लाइन है, would see his hurt hands, जो the person who is gathering salt, he would be aware of his foolishness, वो व्यक्ति अपनी बेवकूफ़ी के प्रति सजग हो जाएगा। He will come to know about his mistake of gathering salt more than he required। जितना उसे सॉल्ट चाहिए उससे अधिक वो कलेक्ट कर रहा था। That's why his hands were hurt, उसके हैंड्स थोड़ा हर्ट हो चुके हैं और वो इस काम को छोड़ देगा। अधिक सॉल्ट को गैदर करना, जो जरूरत से ज़्यादा सॉल्ट गैदर कर रहा था, उसको वो छोड़ देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे दिस वीडियो लेक्चर 1 ends up here. I shall come up with second video lecture. Till then, have a nice day. Thank you very much.